Namaste. I am Ankit Bhuttani, and it is my pleasure to welcome everyone to the Vidya webinar. Vidya is a 35-year-old organization working in the area of education, women empowerment, and skill building. It is founded by Rashmi Mishra ji in IIT Delhi. In our journey, we have reached over 4 lakh lives with our interventions in Delhi, Mumbai, Bangalore, and Pune, with the motto of educate, empower, and transform. Today, our distinguished guest speaker, Professor Satish B. Agnihotri ji, will be delivering a webinar talk on post-COVID educational challenges and opportunities. Dr. Vidya Subramaniam from IIT Bombay will be the moderator for the session. Before we start the session, it's time for some housekeeping announcement. May I request all the participants to ask your question in Q&A box instead of chat box. Now, may I request Dr. Subramaniam to introduce our distinguished guest, please? Thank you. Hi. Thank you, Ankit. Good afternoon, everyone. The conversation today is about challenges and opportunities in education in a post-COVID world. The immediate future looks fairly bleak for interpersonal interaction and other so-called normal modes of interaction. One of the things that will be majorly affected by these constraints will be the field of education in schools and colleges across social strata, across states in the country. Schools will definitely need to come up with new methodologies of learning, and after-school activities will need to be far more creative and effective. The other challenge will be how to maintain physical distances and still ensure peer-to-peer learning. Both digital technologies and more imaginative ways of doing things will be required. To speak about these challenges, it is my pleasure to introduce Professor Satish Agnihotri of the Center for Technology Alternatives for Rural Areas at IIT Bombay. Hello, everybody. Professor Agnihotri, formerly a bureaucrat, is now a professor at IIT Bombay. He has earlier worked as the Secretary of Coordination in the Cabinet Secretariat, as the Secretary of the Ministry of New and Renewable Energy, as DG Defense Acquisition, Additional Secretary of Agriculture, DG Shipping, and as Joint Secretary of the Cabinet Secretariat. He has also worked in Odisha in various capacities between 1981 and 2007. Professor Agnihotri is passionate about issues of gender, child malnutrition, and energy access inequalities. His research on declining sex ratios in India has been approvingly cited by various scholars, including Professor Amartya Sen. He completed his master's degree in physics and MTech from IIT Bombay. He also has an MA in rural development, followed by a PhD from the School of Development Studies at the University of East Anglia, Norwich in the UK. It is my pleasure to invite him to speak on this very important issue we're discussing today. Over to you, Professor Agnihotri. Thank you very much, Vidya. Incidentally, the organization Vidya and the moderator Vidya, I would like to thank both of you for giving me this opportunity. We have a mixed audience with us today, but primarily we are looking at Vidya's teachers who are involved in a very noble task of giving off-school support to children, women's empowerment program, youth support program out of the school. So their teachers, I think for them this is primarily aimed at. In addition, in my mixed audience, I have my colleagues and maybe many of my students. So thank you everybody and welcome all. I think we can go without much ado to the PowerPoint presentation which I have, which will help us keep on track. I would request Mehala to upload that. Yeah. Before we begin, I would suggest everybody that Vidya gave a very generous introduction for me. Usko ek 30-40% का discount लगा दीजिए. But thank you, Vidya, for that. So we are looking at post-COVID-19 education challenges and opportunities. अब opportunities की बात तो पता नहीं क्या होगी, but challenges पहले देख लेते हैं. I think opportunities will come out of that. So could we go to the next slide? Yeah, so let us begin at the beginning. But before we go to this current crisis at hand, let me narrate a very interesting experience which I had about teaching children of migrant workers who were behind
Hostel 1 Hill, there were some migrant workers, and as part of our NSS program, I used to be in IIT then, I'm talking of the late 70s, and we decided to teach these children. And I and a friend of mine used to go there in every evening. And there was a lot of enthusiasm among the children. The parents were skeptical to begin with. Gradually, उनको भी भरोसा आया कि हाँ ठीक है, पढ़ाने के लिए आते हैं IIT के बच्चे. And then our first, one of our first classes where I used to teach them how to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. All these 7, 8 children were sitting in front of me with their slate. And what was that slate? It was a farshi ka tukda and a chalk. And I was sitting in front of them. I also had a slate in my hand. And I wrote figures 1, 2, 3, 4, and so on. And then I just wrote 5 and asked all of them, chalo likho to. So everybody wrote 5. I said, jara dikhao kya likh rahe. So I saw everybody's slate, and you will be surprised. Everybody had written the number 5 correctly, but each child had written from his or her orientation. तो किसी ने 5, जो मेरे बिल्कुल सामने का बच्चा था, उसने 5 लिखा था उल्टा. So I said, अरे उल्टा लिखा? नहीं सर, आपने जैसा लिखा वैसा ही मैंने लिखा. That was the first time I realized that we take a lot of things for granted. In our childhood, we took blackboard for granted. So anything which is written by the teacher on the blackboard is seen similarly by all the children sitting in the class. So that itself was a big learning from me. I'll cut a long story short. जब हम लोगों का पढ़ाना खत्म हुआ means our exams came in, so we told the parents कि अभी हम बंद करेंगे. We decided to take these children for a picnic. So the day of picnic, when I went in the evening, I was amazed at the care with which parents had, the children had neat dress and hair made up, and साथ में नाश्ता वो टिफिन के लिए जा रहे हैं. The kind of care that the parents took, it taught me a lot. And this is something which we will link up as we go along. So point is, and subsequently also I was teaching children of Group D employees in Central School, but that was a more structured environment. Central School के class में शाम में बच्चों को पढ़ाना. But there also I found that teaching them, paying individual attention, motivating them, saying shabash, encouraging, those things did matter for each of the child. So the children had their self-esteem, and that if you gave them positive encouragement, I think that did wonders. So I'll from that narration, I'll now come to where we are. Vidya, the organization, not our moderator, gave me a list of, which you see on your screen. कि ये हमको जानना है. क्या strategic plan होगा? How is life more than education? Principles of teaching and learning. तो ये सब पढ़ने के बाद मैंने कहा कि यार वो 1 घंटे के क्लास में इतना ज्ञान लोगों को नहीं दिया जा सकता है. But I'll try my best to do a practical justice to the topic rather than a theoretical justice to the topic. So can you go to the next slide, please? So everybody knows we are in the midst of a change, and right now in the midst of a crisis, and it has raised questions. सवाल उठे हैं सबके दिमाग में, हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में. What has exactly changed? How long is this uncertain phase going to last? Natural question is, when will be back to normal? Of course, many children may say कि बस ऐसे ही चलने दोगे, रोज शाम को रास्ते पे क्रिकेट खेलते हैं, वही अच्छा है, कहाँ स्कूल का चक्कर रहेगा. But वो स्कूल का चक्कर आएगा, So we will have to go back to normal. जब मैं कहता हूँ तो the question comes, ये क्या normal होने वाला है? Frankly, most of us don't know the clear answers, but we can make intelligent guesses. Nevertheless,
कुछ चीजें हैं विच आर क्लियर गिवन्स, मतलब उनसे अब छुटकारा नहीं है, उनसे कोई मुक्ति नहीं है. We have to learn those, we have to cope with those, and we also need to plan for a contingency. कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तैयार कैसे उसके लिए रहना है. And I always believe कि वो कहते हैं ना, hope for the best. So you can hope for the best only when you prepare for the worst. और उसके भी मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा आगे जब हम लोग चलते हैं. Can I have the next slide? So what we have now seen is a virus, which I say in a lighter vein, but in a serious vein also it is correct, which you get globally and spread locally. किसी ने सोशल मीडिया पे कहा था कि ये पासपोर्ट वाले ले आए और रेशन कार्ड वालों को इन्होंने थमा दिया वायरस. I think in certain senses is not an exaggeration. So this is a virus which we get globally and we spread locally. इसकी वजह से क्या हुआ है, our norms of interacting with each other, एक दूसरे के साथ अब कैसे हम लोग interact करते हैं, मिलते जुलते हैं, that is going to change. First, which everybody knows, is need for masks. अब मास्क में लोगों को तो ऐसी आदत हो गई कि अब स्टाइलिश मास्क भी बनने लगे हैं, तो वो मास्क की जरूरत है. दिस इज बेसिकली कि आपसे वायरस स्प्रेड नहीं हो. Then the issue is of preventive health and hygiene. Say everybody now knows, by now everybody knows hand washing. Question is, everywhere do you have hand washing facility? Do you have sanitizer? Do you have soap? ये question आने वाला है. बच्चे, all of you know the way they play in the school or even out of the school. Hand washing, not touching the face, these are very difficult things. And जिसने वो कई बार इंटरनेट पे वो आता है, सिंगापुर के मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे, कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है not touching your face. कहना आसान है बट करना नहीं. So when he was giving his speech, his other minister वो ऐसे उसको नच कर रहे थे कि यार तू चेहरा मत अपना टच कर. So it is but it will be a very important point that we don't have to touch our face. More important is we will also have to learn to increase our immunity level. वो कैसे होगा? Different people have different opinion. कोई कहते हैं food होगा, कोई कहते हैं nutrition supplement होगा. Someone says do yoga, someone says do exercise. But immunity level को बढ़ाना पड़ेगा. So these things are pretty clear given. ये जो physical distancing की बात आती है, Actually, I don't like the term social distancing. आप socially नहीं distant हो रहे हैं किसी से. वो पड़ोसी आपको आज भी मिलता है तो आप उतनी गर्मजोशी से पेश आते हैं, वो अच्छा लगता है देख के, आप हाय हेलो बोलते हैं. वो फिजिकल डिस्टेंस आपस का बढ़ गया है. अब ये 3 फीट होगा, 6 फीट होगा, 9 फीट होगा, बट आज की तारीख में हर कोई कहता है यार कम से कम 6 फीट आपस में गैप रखो. एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इज, एक छाता अपने पास रखो तो 2 छाते अगर नहीं टकराए एक दूसरे से तो बराबर 6 फीट का डिस्टेंस रहता है. We'll also have to learn how to avoid gatherings, physical greetings. हाँ, कोई कुछ पावरफुल लोग होते हैं तो उनको कोरोना उनका बैंक बैलेंस और उनका पॉलिटिकल पोजीशन देख लेता है, कहता है अच्छा इसके घर में शादी है ना तो अभी अपन ने वहां नहीं जाने का. या कोई बहुत बड़े बाबा हैं, उनका कांग्रेगेशन हो गया, लोग आ गए तो वायरस कहता है नहीं वहां नहीं जाना है. बट आप और हम जो है ना, अपने को वो नहीं जमेगा बाबा और नेता वाला काम. तो अपने को गैदरिंग अवॉइड करना है और फिजिकल ग्रीटिंग से अलग रहना है. और एक कॉशियस रीओपनिंग अभी होने वाला है. अभी अपन इसको अनलॉक बोलते हैं, लेकिन उसमें चक्कर ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वापस रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी. इस सब के बाद भी एक चीज आपको नजर आएगी कि ये वायरस का जो इंसिडेंस है वो बहुत अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से दिख रहा है. तो 2 राज्यों के बीच में अलग है, रूरल में अलग है, अर्बन में अलग है. तो ये कैसे होता है कि हर एक को मालूम है कि वो पावर प्ले है. वो क्रिकेट में करते हैं ना पावर प्ले 5 ओवर का, जिसमें सब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. लेकिन उसके साथ एक एडिशनल चक्कर रहता है कि कौन से पिच पे आप खेल रहे हो. वो पिच स्लो है, फास्ट है, उस पर बाउंसर ज्यादा आता है. आउटफील्ड अगर स्लो है तो आप मारो तो भी बाउंड्री नहीं लगती है. तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है,
पावर प्ले आ गया और वो मैदान आपका खेल का कैसा है ये आ गया। वो थोड़ा मैं दिखाता हूँ बस, आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो ये अलग अलग जो डिफरेंसेस है वो अपन एक बार देख लें, फिर अपन मेन टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। जी, व्हाट वी डिड वाज, हमने केरल का एनालिसिस किया कि केरल में ऐसा क्या हुआ। तो ये वायरस के लिए समझने की एक चीज बहुत जरूरी है कि पिछले 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में जितनी नई केसेस आई है ना, वो नई केसेस आपके केस का कितना फ्रैक्शन है। तो ये आप पढ़ाते हैं ना बच्चों को परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो बस ये ऐसा ही है कि पिछले 7 दिन की जो केसेस आई थी वो नए केसेस का कितना परसेंटेज है। तो आप केरल में देखेंगे कि ये परसेंटेज ऐसे धीरे 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 बढ़ा, उसके बाद घटना शुरू हो गया, फिर वो स्टेडीली घटा है। मैंने पंजाब का भी एनालिसिस किया था, पंजाब में वो घटने के बाद फिर एक बार बीच में बढ़ गया था। तमिलनाडु में आपको याद होगा फिर बीच में बढ़ गया था। कर्नाटका में केरल के जैसा ही दिखता है। तो जब ये ऐसा नीचे जाना शुरू हो जाता है तब आप थोड़ी सी छुटकारे की सांस ले सकते हैं कि चलो भाई अब ये घटना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड। ये घटता तो है लेकिन बहुत धीरे 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 घट रहा है। तो ये चक्कर है महाराष्ट्र में। अभी अपने को पता नहीं है कि वो बढ़ेगा घटेगा, तो अभी हम लोग सांस रोक के बैठे हुए हैं कि ये किधर जाता है। एंड पर्टिकुलरली दिस इज ट्रू। अब मैं पवई में हूँ, तो पवई के बाहर हम लोगों को हमेशा वो लगता रहता है कि क्या होने वाला है। आप लोग भी अपने अपने वार्ड में देखते होंगे कि कंटेनमेंट जोन किधर हो रहा है, अपन कैसे फंस रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर इसको आप नेशन के मैप पे देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नजर आता है। वो अब अगले स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या इसमें आप देखोगे स्टेट वाला मैप तो आपको टीवी पे अखबार में बहुत दिखता है। हम लोगों ने आईआईटी में ये किया था कि जिले के हिसाब से हम लोगों ने मैपिंग किया था। तो राइट हैंड साइड में आप अगर देखोगे तो वो एक बड़ा सा ग्रीन पैच है। कई जगह पे आपको दिखता है कि ये इतना फैला हुआ नहीं था कोरोना। अभी ये पिक्चर थोड़ा चेंज हो गया है। ये मैंने 22 अप्रैल का किया था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 22 के बाद वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवाइज नहीं किया, तो हम लोग उसी पे रुक गए, वो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन करके। लेकिन मैं आपको अगला अब स्टेट के अंदर जाके दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या वो बाएं हाथ में आपको दिखेगा हिमाचल और उत्तराखंड दो पास पास में लगे हुए स्टेट हैं। उसमें एक पट्टा है कोरोना से अफेक्टेड, बाकी आप वो देखो ग्रीन एरिया बिल्कुल खाली। मेघालय का देखो एक जिला अफेक्टेड है, बाकी सारे जिले खाली थे, कोई केस नहीं था। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। अगला देखिए, मैं आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ का दिखाता हूँ कंबाइंड मैप। क्या इसमें भी आप देखोगे ये 2 बड़े राज्य हैं, लेकिन कोरोना का इंसिडेंस अगर आप देखोगे तो ब्राउन छोड़ के बाकी जगह पे बहुत कम केसेस हैं। ठीक है, और अगर आप स्टेट के अंदर जाओगे, जो मेरे एक स्टूडेंट ने महाराष्ट्र का मैप बनाया था वो भी आप देख लो नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट प्लीज। या सो देयर आप महाराष्ट्र में भी देखोगे कि तालुका के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम जगह पे कोरोना फैला हुआ है, बाकी सारी चीजें जहाँ पे केस नहीं है। तो ऐसे जगह पे एक्टिविटी अलग होगी, जहाँ पे ऑरेंज है वहाँ एक्टिविटी अलग होगी, जहाँ पे रेड है वहाँ पे लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा। और बॉम्बे में वही हम लोग लॉकडाउन वाले टाइम में ही है, तो बाकी देश का जो हो रहा है वो तो देखेंगे, लेकिन हम लोगों को अभी बॉम्बे पे फोकस करना है और अपने एजुकेशन के सवाल पे फोकस करना है। नेक्स्ट प्लीज। या तो अभी वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू मुंबई और अपने हाथ में जो इश्यू है we'll look at that। अब ये क्या हुआ, ये जो चेंज है उसके वजह से डिसरप्शन तो आया है, चीजें गड़बड़ हुई हैं। ये कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है? नॉर्मल स्कूल में भी प्रॉब्लम आया, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में या मेडिकल कॉलेज में वहां भी प्रॉब्लम आया। लेकिन उन लोगों को भी प्रॉब्लम आया कि जो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे थे, वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे थे, जैसे विद्या वाले कर रहे हैं, इनका प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा अलग नेचर का होगा, और नॉर्मल स्कूल का प्रॉब्लम और इंजीनियरिंग स्कूल या कॉलेज का प्रॉब्लम में अलग होगा। और अभी लकीली क्या हुआ है, जो एकेडमिक छुट्टी का टाइम है और लॉकडाउन का टाइम है वो कंसाइड कर गया, इसलिए थोड़ा सा रिलीफ आप लोगों को है। लेकिन अभी वी हैव टू फिगर आउट कि जब रेगुलर एक्टिविटी चालू होगी, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वो पावर प्ले ओवर जब खत्म होगा तो अभी बैटिंग कैसे करने का है।
स्टार्ट तो करना पड़ेगा, क्रीज पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब ये डिफिकल्टीज में आप देखिए कि वैसे ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने का प्रॉब्लम जो है वो कोविड से पहले भी था। अगर वो नहीं रहता तो आप लोगों को आउट ऑफ स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने की विद्या को जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक तो पहले देख लीजिए वो प्रॉब्लम था। उसके ऊपर अभी पिछले 2-3 साल में या 5 साल में 8 साल में उसमें वो ई लर्निंग का एडिशनल चक्कर आ गया है। तो ई लर्निंग का जो चक्कर आ गया उसमें फिर कंप्यूटर लैब की बात आती है, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात आती है, आप लेक्चर लेते हो डिजिटली, उसकी बात आती है। अब ये दोनों प्रॉब्लम कम नहीं थे, उसमें आपके ऊपर आ गया पैंडेमिक, ये कोरोना। और वो आपको कह रहा है कि अब जो चीजें करनी तो है, वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके करना है, प्रिवेंटिव हेल्थ करना है। उसके ऊपर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। इकोनॉमिक स्लोडाउन आपको सोचना पड़ेगा, और मुझसे ज्यादा ये टीचर ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उसके सामने जो बच्ची बैठी हुई है, हो सकता है उसके पिताजी की नौकरी 1 महीने पहले चली गई हो। उसको क्या करते हैं? बच्चे पहले जैसे आते थे अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, अभी उस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है क्या? दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये 3 डिफिकल्टी मल्टीप्लाई की, और आउट ऑफ स्कूल और स्कूल सपोर्ट और वोकेशनल प्रोग्राम देने वालों के लिए वो फर्दर डिफिकल्ट हो गया। तो वो हिंदी में कहते हैं ना कि एक तो करेला उस पे नीम चढ़ा। तो you have a bigger problem on hand compared to more established institutions। तो ये बात हमें भी समझनी चाहिए। आपको तो मालूम ही है, मतलब जूता कहाँ चुभता है ये आपको हमसे ज्यादा अच्छा मालूम है। Can you go next please? अब इसे कोप कैसे करें? अब कई बार लोगों को लगता है या कोपिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मैंने कई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स देखे हैं जो अभी आराम से ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं। पूछा कि कैसे सीखा आपने, तो वो कहते वो हमारी नाती जो है ना, उसने मेरे को सिखा दिया, हमारे पोते ने सिखा दिया। तो क्या है, ग्रैंड पेरेंट को जो मोटिवेशन आता है ना, वो अपने बच्चों से नहीं आता है, लेकिन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से आता है। ठीक है ना? तो मोटिवेशन हो तो आदमी चीजें सीख लेता है। और मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब कंप्यूटर पे वो ताश का गेम होता है ना, सॉलिटेयर खेलते रहते हैं, तो मेरी माँ चुपचाप देखती रहती थी। शी वॉज सम 80+ उस समय। तो एक दिन उसको ये हुआ, कहती ये कैसे ताश खेलते हो, मेरे को सिखाओ। तो मैंने उसको बैठा के वो माउस कैसे हैंडल करना है सिखाया, और 2 दिन बाद वो फटाफट सॉलिटेयर खेलने लगी। और फिर मेरे पिताजी को उसने बताया कि तुमको चाहिए तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तो क्या है, आदमी सीख तो लेता है, लेकिन वो सीखने के साथ हमको कई चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब सॉलिटेयर सीखना आसान है, टैली सीखना या वो अंग्रेजी की कविता 9वीं क्लास में सीखना, ये थोड़ा अलग काम है। ठीक है ना? नॉर्मल टाइम में भी स्कूल में क्या होता है, जिसको हम लर्निंग कर्व कहते हैं। लर्निंग कर्व आपको बताता है कि जो आप लेक्चर में सुनते हैं ना, वो बहुत कम आपके काम आता है, 5-6-8% काम आता है। पढ़ते अगर आप उसको हैं तो एडिशनली फिर आप उसको रिटेन करते हैं। उसमें अगर ऑडियो विजुअल हेल्प मिली कि ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, या शरीर का ये अपनी पसली ऐसे दिखती है, तो उसको ऑडियो विजुअल हेल्प दिखाया तो ज्यादा फिर बच्चे के दिमाग में रहता है। और अगर क्लास में डिस्कशन होता है तो डिस्कशन से वो ज्यादा सीखता है। और लास्ट चीज है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उसमें वो परफेक्शन आएगा। लेकिन वो प्रैक्टिस जो है ना, वो रैंडम नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल गाइडेड होनी चाहिए। अपन जैसे वो नेट प्रैक्टिस क्रिकेट में करते हैं ना, तो उसको वो ऐसे रैंडम बॉल नहीं उस पे आता है, उसको सिखाते हैं अपन स्पिन बॉल कैसे खेलने का है, फास्ट बॉल कैसे खेलने का है। सो ये गाइडेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यही प्रॉब्लम आपको ई लर्निंग में भी आएंगे। तो जब आप डिजिटल क्लास की बात करते हो, तो आपको बच्चों के साथ जो आपका क्लास है ना, वो 4 टाइप का हो सकता है। एक तो हो गया पैसिव, आप बोलते जाओ, बच्चे सुनते जाते हैं, क्लास खत्म, किसी के चेहरे पे कुछ दिखता नहीं है, टीचर को बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, उस दिन का डिनर खराब हो जाता है। दूसरा होता है एक्टिव, आप बोल रहे हो, बच्चों को मजा आ रहा है,
इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने जो बताया वो हंसते तो हैं कम से कम, तो फिर आपको लगता है हाँ एक्टिवली हो रही है, एक आध सवाल पूछते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव है और फिर इंटरैक्टिव है। उसमें मेन कहानी यही है कि बच्चों को एंगेज कैसे करके रखना है। और अगर वो विद्या के टीचर्स को लगता है कि नहीं हमारे ही बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको IIT की कहानी बता देता हूँ। सितारा का सेमिनार होता था, कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सितारा का सेमिनार हुआ तो हम लोगों ने एक सेमिनार किया, तो सेमिनार किया, वहाँ से बाहर से एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की लेक्चर थी, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और सितारा के करीब 45-46 बच्चे होंगे उस वेबिनार में। सब हो जाने के बाद जब बोला सवाल पूछो, तो गेस करो कितने बच्चों ने सवाल पूछा। अभी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको तो मालूम होगा आंसर। एक बच्चे ने भी सवाल नहीं पूछा। तो हम लोग अब घर लौटे कि यार इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो आपकी दिक्कत वहां से शुरू होगी। उससे पहले दिक्कत आएगी कनेक्टिविटी की। अब हमारे कई स्टूडेंट जो गांव वगैरह में, वो तो कहते हैं कि सर शाम को अगर आप हमको प्रेजेंटेशन करने बोलो तो शाम को कनेक्टिविटी नहीं रहती है, दिन में रहती है। किसी के यहाँ पावर सप्लाई नहीं है। हमारा एक लड़का उत्तराखंड में था, देहरादून में, वो कहा हमारे यहाँ पावर कभी नहीं जाती। उसको नजर लग गई, वो देहरादून में स्टॉर्म आया, उस स्टॉर्म में वो टेलीकॉम का टावर गिरा, ना उसके पास पावर थी ना उसके पास कम्युनिकेशन था। लेकिन लकीली बंबई में अपने को, अभी एक परसों, अभी कल जो साइक्लोन आएगा उसको छोड़ दो, बंबई में अदरवाइज नॉर्मली कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बच्चों को, और मेरे ख्याल से पावर सप्लाई का प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्विपमेंट का प्रॉब्लम आएगा। सबसे अच्छी पोजीशन क्या है? टीचर के पास लैपटॉप है, अच्छी कनेक्टिविटी है, बच्चों के पास लैपटॉप है, जूम पे सब अच्छा दिखता है, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं होता है। लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट होगा, फोन होगा, किसी के पास स्मार्टफोन होगा, किसी के पास वो 1500 रुपए वाला लावा होगा। अब सबको कैसे आप एंगेज करेंगे? अच्छा, दूसरा, जहाँ पे बच्चे रहते हैं आपके स्टूडेंट, आपको तो पता ही होगा, कई जगह पे फिर वो एक स्मार्टफोन जो है वो 3 भाई बहन मिलके शेयर करते हैं। अब उनमें अगर आपस में टग ऑफ वॉर शुरू हो गया कि मेरे फिजिक्स का क्लास और तेरा कॉमर्स का क्लास, वो भी एक अपनी जगह पे झगड़ा है। फिर जैसे मैंने कहा, जब आप लेक्चर देंगे तो बच्चों को एंगेज कैसे करना, ये आपके सामने सवाल आएगा। और इसमें एक बड़ा सवाल आएगा जो हम लोगों को टैकल करना है, फिजिकल डिजिटल रेशियो। तो फिजिकल डिजिटल रेशियो मतलब आपको सारे क्लासेस डिजिटल करके नहीं चलेगा, सारे क्लासेस आप फिजिकल नहीं कर पाओगे, तो आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा। और ये चीज जितने लोगों ने डिजिटल क्लासेस लिए हैं ना, सबको मालूम है कि अगर आप अपने ऑडियंस को पहले से जानते हो, जान पहचान हो गई है, एक आपस में रैपो बन गया है, तब डिजिटल क्लास आसान होता है। एकदम नए क्लास के सामने अगर आप एज ए टीचर चले जाओ, वो डिजिटल क्लास बड़ा चक्कर वाला क्लास होता है, वो नहीं होता है। इसलिए आपको पहले, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, आप अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे, आपको पहले एक वो रैपो बनाना पड़ेगा। फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो फिजिकल डिजिटल रेशियो क्या रखना है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रीडिंग मटेरियल हम कहते हैं। तो रीडिंग मटेरियल खोजने में बच्चे का टाइम नहीं जाना चाहिए। वो टीचर ने उसको बता देना चाहिए कि बेटा ये 5 URL है, यहाँ पे क्लिक करो, ये रीडिंग मटेरियल देखो। उसमें क्या होता है कि फिर बच्चे को अगर आदत लग जाती है, उसके बाद फिर वो रीडिंग मटेरियल आपस में ग्रुप में बात करके, अरे यार वो वाला लेक्चर बड़ा अच्छा था, या उस टीचर ने अच्छा सिखाया, या तेरे को पता है टैली वो वाला कितना अच्छा सिखाता है हिंदी में, वो आपस में कर लेंगे। लेकिन पहले आप उनको रीडिंग मटेरियल खोजने में टाइम नहीं जाना चाहिए। वही चीज ऑडियो विजुअल के साथ भी है। दूसरा क्या है, आप बच्चों को आपस में एंगेज करना पड़ेगा। तो एक ग्रुप डिस्कशन, और ये ग्रुप डिस्कशन कोई नई चीज नहीं है। हम लोग जब अपने स्कूल में भी थे, आप लोगों को ही पता है, वो स्कूल में कई हाउसेस बनते थे कि एक टैगोर हाउस होता था, एक सुभाष हाउस होता था, एक जवाहर हाउस होता था, एक लाल बहादुर हाउस होता था। वो लोग फिर आपस में क्विज होती थी, कंपटीशन होती थी, कभी अंताक्षरी होती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लास में भी ऐसे अगर आप ग्रुप बनाएं
तो आई थिंक वो उस ग्रुप में वो बच्चे आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज है, आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, तो उसमें क्विज होनी चाहिए, बच्चे को फीडबैक भी देना चाहिए। चौथी चीज जो टीचर को थोड़ी सी सेंसिटिव रहना पड़ेगा, द होम एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब आपको अपने बच्चों को ज्यादा करीब से जानना पड़ेगा। सॉरी मैं जो सब बता रहा हूँ उसमें टीचर के सर पे काफी बोझ आएगा, बट देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब पहले सवाल आता है कि अब फिजिकल डिस्टेंसिंग में आप क्या करेंगे, आप कैसे कोप करोगे। आपको स्पेस अगर आपने आधा किया तो आपको शिफ्ट डबल करनी पड़ेगी। अगर कहते हैं ना कि आधे बच्चे क्लास में आएंगे तो आपको डबल शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको फायदा वहां पे है जहां आप स्कूल आवर के बाहर पे क्लास ले रहे हैं, तो स्कूल को आप कह सकते हैं कि साहब आप हमें 2 क्लासरूम दे दीजिए। लेकिन अगर 2 क्लासरूम दे देते हैं एक की जगह पे, तो फिर 2 अलग अलग टीचर वहां होने चाहिए। तो ये आप उसमें तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप रोटेशन कीजिए, कि फिर फिजिकल और डिजिटल का रोटेशन कीजिए। किसी ने ये बात उठाई कि क्या हम पार्टीशन कर सकते हैं। देखिए, मास्क और 6 फीट दोनों इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार देखा होगा दुकान में वो प्लास्टिक का कर्टन लगा देते हैं। प्लास्टिक में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 2 लोग एक दूसरे को देख पाए। तो क्या हम स्कूल में सोच सकते हैं कि ऐसा वो प्लास्टिक का कर्टन रहेगा, जैसे वो अस्पताल में होता है ना, कपड़े बदलने के लिए वो एक फ्रेम रहता है, उसमें कपड़ा लगा हुआ रहता है, तो उसी तरह का प्लास्टिक लगा हुआ पार्टीशन क्या बन सकता है। नॉर्मल क्लास में नहीं हो, कम से कम कंप्यूटर लैब में 2 डेस्कटॉप के बीच में हो सकता है क्या। ये सॉल्यूशन आपको अपने अपने जगह पे बनाने पड़ेंगे। मेरे डॉक्टर विद्या सुब्रमण्यम को ही मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने पहली बात कही कि सर वो पार्टीशन तो ठीक है, वो गर्मी में बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। तो ठीक है, हो सकता है गर्मी में नहीं, जब मौसम ठीक है उस समय पार्टीशन हम सोच सकते हैं क्या। दूसरा है हाइजीन कोड। अब हम लोग भी मास्क लगा लगा के पक जाते हैं, तो बच्चे तो बिल्कुल इसमें बोर हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा मास्क वो लगाते हैं। फेस शील्ड की लोग बात करते हैं, लेकिन कोई बच्चा बैठ के फेस शील्ड लगा के नहीं सुनने वाला है आपका लेक्चर, तो इसलिए आपको ये मास्क और पार्टीशन थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। सैनिटाइजर या सोप, जब वो स्कूल में आते हैं, अब आपने मान लीजिए वहां पे स्लम में रेंटेड बिल्डिंग में आप दे रहे हैं, तो उस रेंटेड बिल्डिंग में जब बच्चे आएंगे तो या तो उनको सोप वाटर दीजिए या सैनिटाइजर दीजिए। क्या हम बच्चों को आदत डाल सकते हैं कि गर्म पानी पियो। कई लोगों को ये मालूम है कि चाइना में तो ये पहले हुआ करता था ना कि वो ग्रीन चाय स्कूल के बाहर वो उबलती रहती थी एक बर्तन में, बच्चे वो पीते रहते थे। और कई लोगों का ये मानना है कि उसमें बच्चों के हेल्थ पे काफी फर्क पड़ा। ये सब अपनी जगह पे ठीक है। आप ये मान के चल रहे हैं कि नो वन विल बी कोरोना पॉजिटिव, सो यू डिसाइडेड कि हाँ वी विल हैव 1 फिजिकल क्लास 1 डिजिटल क्लास, फिर एक फिजिकल फिर एक डिजिटल, वो सब ठीक है। एक बच्चा या एक टीचर या कोई एक दिन अगर आ जाता है कि साहब ये कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या होने वाला है, वो फिर आपकी वो क्लास रुक जाएगी। तो इसीलिए कॉन्टिजेंसी जो आपको तैयार रखनी पड़ेगी कि अगर कहीं घपला हुआ तो कैन वी गो कंप्लीटली डिजिटल, तो सिर्फ डिजिटल पे क्लास चल सकती है या नहीं। ये जब आप कहते हैं तो इसका एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा। वो फाइनेंशियल बर्डन कैसे बियर करना है वो मेरे बस की बात नहीं है। आई थिंक विद्या मैनेजमेंट को इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन ये एक समस्या आएगी हम लोगों के सामने कि कौन वो फाइनेंशियल बर्डन ये करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, मैं मिक्स हिंदी अंग्रेजी में कर रहा हूँ। आई होप नो वन हैज ए प्रॉब्लम विद दैट। एक अगला इशू आता है एब्जॉर्प्शन। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप कितना एब्जॉर्ब करते हो, कितना रिटेन करते हो, और उसका कितना एप्लीकेशन होता है, कितना इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फॉरगेटिंग कर्व एक होता है, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, कि आप करीब 40% आप आधे घंटे के अंदर भूल जाते हो। आप करीब 2/3 जो है वो आप भूल जाते हो एक दिन में, और 80% एक महीने के अंदर भूल जाते हो।
तो आपने आज क्या खाया आपको एकदम याद रहेगा, परसों क्या खाया था आपको अंदाज रहेगा, 15 दिन पहले क्या खाया था वो कोई बहुत फर्स्ट क्लास डिश नहीं हो तो आपको याद नहीं रहता है, अनलेस आप इसको अप्लाई करो और रिपीट करो। तो ये चीज हमको करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेड प्रैक्टिस, नॉट ए रैंडम प्रैक्टिस। तो आपको एज ए टीचर समझ लेना पड़ेगा कि ये अपने टीम में 11 बैट्समैन हैं, उसमें एक शिखर धवन भी होगा, उसमें एक आगरकर भी होगा, तो उनको प्रैक्टिस अलग अलग करानी पड़ेगी। तो वो एक थोड़ा सा टीचर्स को अपने आपस में बैठ के ये तय करना पड़ेगा, और वही चैलेंज जो फिजिकल क्लास में आता है वही ई क्लास में भी वही आने वाला है। और उसमें आपका जो क्लाइंट ग्रुप है उसको आप जोड़ दीजिए, और उसके ऊपर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नए नए डिसिप्लिन आप ला रहे हैं, मास्क का, डिस्टेंसिंग का, वो सिर्फ क्लास में नहीं है, एट होम ऑल्सो, सम टीचर्स ऑल्सो। अब जब 20 बाय 20 की खोली में 4 लोग रहेंगे तो आप किस डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मुझे उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन ये समस्या हम उससे छिप नहीं सकते हैं। तो ये भी हमको इसमें सोचना पड़ेगा। जब ये स्कूल स्टार्ट होगा तो इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा विद्या मैनेजमेंट को कि ये एक लिस्ट बना ले, चेक लिस्ट बनेगी कि भाई ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया, नहीं हुआ है, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा के रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम अपने को आने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। या तो अभी मैंने एक ये सारी चीजें जो मैंने बताई इसको मैंने एक टेबल में डाला है। ये टेबल क्या है, आप लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो रेगुलर क्लास, डिजिटल क्लास, आउट ऑफ स्कूल सपोर्ट के लिए रेगुलर और डिजिटल क्लास, और ये नया जो चक्कर हमारे सर पे आ गया है कोरोना का, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में आपको दिखेगा कि ये 4 चीजें आपको अपने ख्याल में रखनी पड़ेगी। और ऊपर से नीचे अगर जाओ तो वो जो 4 चीजें मैंने बताई, लेक्चर सुनना, उसकी चीजें, काम की चीजें पढ़ना, ऑडियो विजुअल हेल्प, डिस्कशन जो क्लास में होगी उसकी प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन बच्चों को मोटिवेट कैसे करोगे। तो ये मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिकॉग्निशन जो है वो इंडिविजुअली होना चाहिए। देखिए हर बच्चा बहुत ब्राइट या हर बच्चा बहुत डल नहीं होता है, तो आपको ये देखना है कि जिसका जितना लेवल है वो वहां तक अगर कोशिश करता है तो आप उसको शाबाश बोलो, देन फिर वो और ट्राई करेगा और इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए ये मोटिवेशन जो है बच्चों का वो इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। और जहां तक प्रैक्टिस की बात है वो क्विज और असाइनमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी नई चीज आपके सामने डालूंगा कि जो डिस्कशन होती है क्लास में, उसमें आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। या तो आप एक ग्रुप वर्क करो, तो उसमें टीचर को अपने क्लास के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो टीम एक ही टीम रहेगी पूरे 1-2-3 महीने, या एक महीने के बाद टीम रोटेट करोगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अभी जब फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो बच्चों के बीच में आपस में दे नीड टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो हाउ डू यू स्ट्रेंथन दैट इंटरैक्शन, हाउ डज द टीम वर्क हैपन, ये आपको अपने अपने क्लास में सोचना पड़ेगा। उसका कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एक जो टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियसली आप लोग सोचे, जिसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लास। फ्लिप्ड क्लास मतलब आप बच्चा पहले से पढ़ के आ जाएगा। सो कैन वी गो नेक्स्ट स्लाइड। या क्या होता है कि इफ यू रीड, मतलब आज जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं तो फायदा होता है क्लास में। और ये हम लोग रेगुलर क्लासेस में कर रहे थे, वो मैं हाई स्कूल में था तब भी करता था, क्योंकि कुछ टीचर जो पढ़ाते हैं वो बहुत फास्ट चले जाते हैं, कुछ टीचर जो है वो बहुत स्लो चले जाते हैं। तो आप अगर पहले से पढ़ के जाओ, अगर जो टीचर बहुत स्लो हैं तो आप अपना खिड़की के बाहर देखो, किसी को पत्थर मारो, लेकिन अगर वो टीचर बहुत फास्ट जा रहे हैं तो फिर आप भी उसके साथ कैचअप कर सकते हो। सॉरी, मैं ये कोई आपके स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए नहीं ऐसा सोच के मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वो लोग सीख लेंगे ये सब तरीके। लेकिन ये है कि आप
बच्चे को पहले बता सकते हो कि कल ये हम लोग डिस्कस करेंगे, या इसको आगे पढ़ के आ जाओ। लेकिन वो जब पढ़ के आएगा तो वो मटेरियल जो है आपको हमेशा एक क्विक रिकैप क्लास में देना चाहिए। और आजकल वो सबको क्विक रिकैप की आदत हो गई। वो टेलीविजन सीरियल देखने के वजह से क्या हो गया, बीच में 3 एपिसोड मिस भी कर जाओ तो चौथे में वो बोलता है क्विक रिकैप, तो सब वो दिमाग में समझ में आ जाता है। तो क्विक रिकैप से क्या होता है कि हर कोई सेम, एवरीबडी विल बी ऑन द सेम पेज। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, तो अब ये आपको क्लास में 1 घंटे का मान लो क्लास है, तो दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि हर 12-13 मिनट के बाद, जैसे कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं ना टीवी में, वैसे आप 12-13 मिनट के बाद एक 3 मिनट का ब्रेक ले लो क्विज के लिए। सो यू हैव टू टेल दैट स्टूडेंट कि अभी ये अपन ने सीखा, अभी ये छोटा सा क्विज है, तो क्विज बना के रखिए। एडवांटेज विल बी, बच्चे पढ़ के 1-2 क्लास में फांकी मारेंगे, बट लेटर ऑन बच्चे दे विल रीड बिफोर हैंड, दे विल कम, you will also get pleasure out of it and they will get encouragement out of it. So one advantage is if you go for a flipped class with intermittent quiz, उसमें फिर ग्रुप वर्क अगर आप कराते हैं, so one group will say we have solved this problem, other group will say we have solved this problem, और वो प्रेजेंट करेंगे कि हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया। वो प्रेजेंटेशन करना वो बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, बच्चों का सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। तो इसको आप थोड़ा सीरियसली सोचिए। और जैसे मैंने कहा कि वो प्रैक्टिस एंड रिकॉग्निशन, अब ये सब जब होगा तो टीचर पे बर्डन बढ़ने वाला है, बट उसमें मेरे ख्याल से टीचर को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, टीचर को ट्रेन करने की जरूरत है। मैं उस पर आता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या है, हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि पहले जो अपने फिजिकल क्लासेस होते थे उसके बारे में अपने को कितना भी अच्छा लगे, कितना भी रोमांटिक लगे, मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि वो गाना है ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, दैट्स ओके बट इट विल नॉट कम। सो यू हैव टू ब्लेंड द फिजिकल क्लास एंड द डिजिटल क्लास, जिसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनिशियल रैपो की जरूरत है, रेशियो क्या करना है वो आप देखिए। One thing I must tell you, that self-learning is not a new idea. There's a very famous book of word power made easy. ये किताब, इसकी मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। इससे बुक 30 दिन में ये आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी सिखाती है। सिमिलरली एक ILO का मैनुअल था कि एक कंपनी का बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, तो उसमें वो कंसेप्ट देते थे, क्विज देते थे, क्वेश्चन आंसर देते थे, तो वो करके आदमी को ये समझ में आ जाता है। मैंने खुद जब IAS का इम्तिहान दे रहा था तो सोशियोलॉजी पहले मैंने एक इस टाइप के किताब से पढ़ के समझी थी, उसके बाद रेगुलर किताबें में पढ़ने लगा। तो सेल्फ लर्निंग इज नॉट ए न्यू आइडिया, ये पहले फिजिकली भी होता था, अब ये डिजिटली। और मैं सारे टीचर्स को कम से कम रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो नॉर्मल लेवल की किताब आप लोग खरीद के पढ़ लीजिए। आपको वो अंग्रेजी तो आपकी जो भी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका वो नॉर्मल लेवल में से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आइदर और नहीं है, दिस इज ए ब्लेंडेड टेक्निक दैट विल वर्क देयर एज आई सेड, बट यू मस्ट बीवेयर ऑफ मर्फीज लॉ कि अगर कहीं फिजिकल में प्रॉब्लम हुआ तो वी मे हैव टू फॉल बैक ऑन द डिजिटल, कम से कम अगले अभी से दिसंबर वाले पीरियड में। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा एक इश्यू है जो बिल्कुल अलग है, लेकिन इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए कि पहले भी कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया, लेकिन अब शायद हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिटी रेडियो ये पहले भी था, खासकर जब आप मान लीजिए अंग्रेजी की कविता पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से जिसका वो रेडियो पे जो ड्रामाटाइज उसको करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड टीचिंग एड and it is being used at various places. आजकल इंटरैक्टिव रेडियो भी आ गए हैं, टेलीविजन इज वन, टेलीफोन बेस्ड एप्स, देयर आर नंबर ऑफ एप्स व्हिच मेक्स थिंग्स इजियर, तो उन एप्स पे नजर रखिए। सोशल मीडिया, these days some people have also done the experiment of tutoring on WhatsApp और ऑनलाइन लर्निंग। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट डिजिटल क्लास की जूम पे क्लास ले लिया तो हो गया, सबको मोक्ष मिल गया। हम लोग को अलग अलग मेथड्स वी हैव टू कीप देम इन माइंड,
or we will have to customize the pace of the child. So this is something which is very important, that in the same class अलग अलग स्पीड से बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, absorb करते हैं, retain करते हैं. So I think it is important that we need to keep this in mind. Next please. ये customization होगा वो subject wise होगा. अब natural science का digital class, commerce का digital class और अंग्रेजी का digital class बिल्कुल अलग. So इसलिए we should keep in mind that one size does not fit all. Other important question which Vidya does not have to face, क्योंकि आपकी जो लैब है वो कंप्यूटर लैब है, लेकिन ये जो लैब वर्क होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, लैब वर्क के बारे में क्या करना है? लैब वर्क के बारे में there is no substitute for the physical lab work. अब उसमें ये नए डिसिप्लिन के साथ ही लैब वर्क को हमको रखना पड़ेगा. ये टॉपिक चूंकि it was not relevant for the Vidya teachers, I have not gone on it in a big way. But one important thing is training the teachers. Just as you are looking at the students and their problems, आपको teachers भी अलग-अलग type के होंगे. कोई टीचर को हेजिटेशन होगा कि यार अब ये कहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक ये सीखूं, मैं कैसे ये करूं. तो उसमें practice has to be there. The user readiness to learn, resources आपको टीचर को देने पड़ेंगे, and let me assure the resources in teacher, it will be an investment, it will not be an expenditure, and they have to be taught different modules. Final question is the examination and certification. अभी examination and certification, it is a big challenge. I am not going into it because आपको एक advantage है कि you are giving a out of school support. तो स्कूल कैसे एग्जामिनेशन लेगा, दैट पार्ट दे विल बी हैंडलिंग, सो आई हैव नॉट कवर्ड इट टुडे. बट हम लोगों को अभी एक अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और जो करंट फैशन है उसको उससे आगे हट के हम लोगों को अपने लिए अपने तरीके सोचने पड़ेंगे, और लास्टिंग सॉल्यूशन की तरफ वी विल हैव टू गो, एंड नॉट जस्ट द करंट फैशन. किसी ने व्हाट्सएप बोल दिया, सब व्हाट्सएप करने लगे, किसी ने जूम बोला, सब जूम करने लगे. आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मेरे ग्रुप के लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लास्टिंग सॉल्यूशन किस टाइप का है. नेक्स्ट प्लीज. फाइनली दिस इज अ बिग क्वेश्चन. रेगुलर स्कूल जो है वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो कई और चीजें सिखाता है. टीम वर्क है, सोशलाइजेशन है, आपस में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे डिबेट करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे गॉसिप करते हैं, कैसे किसी को छेड़ते हैं, कैसे किसी की शिकायत करते हैं. It also helps you form your world view. It helps you teach your life skill. मतलब मैं तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चा था, वो जूते के फीते नहीं बांधने आते थे. वो एक बड़े बाप का बेटा था. तो फिर वो क्लास में जब कंपटीशन हुई, कंपटीशन से जब जल्दी जल्दी जूते के फीते बांध के जाना होता था खेलने के लिए, वो वही स्कूल में सीख गया. और उसके पिताजी ने फिर कहा कि अच्छा ये तो स्कूल में इसने जूते के फीते बांधने सीखी. दीज आर द थिंग्स जो गूगल से डाउनलोड नहीं होगा. हालांकि अब लोग सिखाते हैं कि यूट्यूब पे देखो और लुंगी कैसे ये करनी है या वेष्टी कैसे पहननी है, सिखाते हैं. बट वो स्कूल में जो पीयर टू पीयर लर्निंग होता है उसका अभी भी कोई जवाब नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज. तो इसलिए मेरा अपना व्यू रहेगा कि आप अगर छोटे स्पेस में भी हैं, फिजिकल क्लासेस में थोड़ा सा आप एक्सरसाइजेस का वर्कआउट कर लीजिए. कई ऐसे एक्सरसाइज है जो छोटे एरिया में 5 मिनट में, 3 मिनट में कर सकते हैं. तो जब बच्चे आते हैं क्लास में तो मे बी इट इज अ गुड आइडिया फॉर द टीचर कि चलो पहले 2-3 एक्सरसाइज कर लिए, अब बैठो पढ़ने के लिए. यू हैव टू थिंक अबाउट. ये नए कंस्ट्रेंट जो है वो इन चीजों को, ये दिक्कतें बढ़ाएंगे. इसको कैसे करना है हमें आपकी सजेशन चाहिए. इनफैक्ट मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग अगर अपने सजेशन लिख के देते हैं तो हम इन सजेशन को एक जगह पे वी विल ब्रिंग देम टुगेदर एंड देन शेयर इट विथ अ लार्जर ऑडियंस. बिकॉज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, one is as I'm again saying, I commend Vidya teachers for the kind of service they are rendering, but उनके जो solutions हैं वो बाकी लोगों ने भी सीखनी चाहिए. तो आई विल वांट योर सजेशंस कि वो पावर प्ले खत्म होने के बाद जो बैटिंग करना है वो कैसे करना है. सो दिस इज समथिंग वेयर आई विल look forward to your suggestions.
I think we not only have neared our time, I have exceeded the time by a minute. So I will stop here, and I'll request Dr. Vidya Subramaniam to. Thank you, sir. I think we've done very well for time this time. We're all exactly on time according to our schedule. But let me take this conversation a little bit further from where you've left it. And मैं एक आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का हम क्या करेंगे? आपने लैब वर्क की बात करी, जिस तरह से आपने सोशलाइजिंग की बात करी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे कोई एनुअल डे फंक्शन हो गया या बुक क्लब हो गया या there was like a visit to the zoo or a museum. अब ये तो हम सबको पता है कि ऑनलाइन जूम में वो बात नहीं है जो एक्चुअल जूम में होती है. तो फिर do you have any strategy or are we adjourned till further notice? I would first say I will not get into extracurricular activity adventure till Diwali. Purely for, and I'm looking from Mumbai point of view. I mean, if you are in Jhumri Talaiya, I would have said football khelo. बॉम्बे में नहीं कर सकते. बट ये जो फिजिकल क्लासेस की मैंने बात की, तो फिजिकल क्लासेस में मेरा अपना व्यू है, जब क्लास आएगा, एंड आई थिंक वन वेरी गुड पर्सन इन दिस रिगार्ड, आई विल आल्सो चेक अप विद माय कलीग प्रोफेसर चेतन सोलंकी. वो कई बार जब एड्रेस करते हैं ना ऐसे गैदरिंग्स को, ही मेक्स देम डू सम एक्सरसाइज फॉर अबाउट 2 minutes, 2-3 minutes, और सब खुश हो जाते हैं उसके बाद. यू नो देयर इज एंथुसियाज्म एंड एनर्जी. So I think we could have these 2-3 such modules. In fact, I think what you have done is a important aspect. Probably YouTube पे या social media पे ऐसे 2-3 minute के there should be a full bunch of things that teachers can do. I think so. So thank you for that suggestion, and I'm sure one of our Sitara students will probably take it up. उसका एक मतलब compendium ही बना देना है. एंड टीचर अपने हिसाब से देखेगा कि मेरे क्लास में अच्छा ऐसे हो सकता है. सो बट देन these extracurricular activities, I mean, I wouldn't say zoo visit, etc. These can be done separately. Best thing for that will be post Diwali, जिसका जिस दिन बर्थडे है उस दिन वो और उसके 5 दोस्त, वो टीचर एक जाए. Because I mean, this again takes me back to that वो जो माइग्रेंट वर्कर के बच्चे थे जिनको हम पिकनिक के लिए ले गए थे. It was an experience which I remember till today. मतलब कब 1977 से आज I still remember it. So I think this is something which can be done. Right. Thanks for pointing it out. Right. Another question I think that a lot of people want to ask is, what are some of the precautions that you would recommend for teachers? As in before class, during class, कि आप अगर मास्क पहन रहे हैं, अगर आप क्या आपको करना चाहिए क्लास के दौरान, क्लास के बाद, क्लास के पहले आने से पहले? Yeah, that's the important question. बच्चे जो हैं वो बोलते नहीं बट ऑब्जर्व करते रहते हैं. So unless the teacher leads by example, वो बच्चे ने देखा कि टीचर पतली गली से मास्क हटा के निकल गए, तो बच्चे भी पतली गली से मास्क हटा के निकल जाएंगे. आपके सामने नहीं जाएंगे, आपके पीठ पीछे करेंगे. So I think probably teacher will have to very subtly, तो वो प्रवचन नहीं देना है बच्चों को. जब बच्चा खुद ही देखता है कि अच्छा मैम गई, उन्होंने हाथ धोए फिर चली आई, फिर मैम ने देखो मास्क पहन के रखा हुआ था, फिर या मैम ने ये प्रिकॉशन ली या सर ने ये प्रिकॉशन ली, तो बच्चे जो हैं दे विल सी बाय एग्जाम्पल. So therefore, I think when we talk in terms of the precautions which the teachers have to take, and the other thing is maybe a good idea to come up with creative solutions. अगर मान लीजिए एक कहीं विद्या के स्कूल में पैर से दबा के डिस्पेंसर वो सोप सॉल्यूशन मिल गया और वहीं पे एक नल है, तो जब वो बच्ची जाएगी अपने घर में ऐसा, वो कहेगी कि वहां देखो कैसा था, you know. So probably this will be a good idea to set up protocols. जो प्रोटोकॉल आज और मैं और आप आज नहीं जानते हैं, गेस कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोटोकॉल सेटअप कीजिए. और टीचर शुड लीड बाय एग्जांपल, नहीं तो वो बच्चे वही करेंगे जो टीचर करते हैं. एंड आई लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑफ तो वो गैरी सोबर्स की कहानी है, लेकिन अपन क्या, हम लोग गैरी सोबर्स नहीं है, तो वो सब वो सिखाता था कि ऐसे बैट करो. तो उसका एक स्टूडेंट था काफी ब्राइट, उसने वो क्रॉस बैट चलाया,
तो गैरी सोबर्स उस पे चिल्लाया कि ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो ही सेड आपने ऐसा ही शॉट मारा था उस दिन. तो गैरी सोबर्स टोल्ड हिम, डू व्हाट आई से, डोंट डू व्हाट आई डू. वो कहना ठीक है, लेकिन बच्चों को अगर आप बोलोगे तो बच्चे सामने मुस्कुराएंगे, बाद में वही करेंगे. तो आपने क्रॉस बैट चलाई ना, तो बच्चे क्रॉस बैट मारेंगे. Correct. That's an excellent point. But the other thing also is that in a school, like you pointed out, there is a lot more that happens than teaching. It is not just about a one-way learning of a curriculum. There is a sharing meals with friends, emotional support from your teacher, senior से कभी बात करें कि इसको कैसे handle करें, ये सब. तो ये सब एक school environment से linked था. Do you think there is any way that we can enrich the non-teaching parts of an online environment? अब अगर बहुत कुछ shift करना है online, so would this non-teaching part of school, can we do something about that? Do you think? Yes, if you see my last slide, I had listed those 5 or 7 things which a school does apart from just teaching. Exactly. वो activities को you will have to guide them. In fact, there could be, I mean, it could be probably some lunch sharing, it could be some experience sharing. और एक क्लास में ही मान लीजिए कि 3 जगह पे 3 ग्रुप बैठ के एनिमेटेड डिबेट कर रहे हैं, फिर उन तीनों को प्रेजेंट करना है. That bonhomie comes in. So physical exercise is a separate thing, but all that see, what I am saying is you are maintaining certain physical to digital ratio. That's it. Okay. ना, so आप जब physical to digital ratio रख रहे हैं, तो your emphasis should be कि वो जो मोनोलॉग वाला काम होता है, वो मैक्सिमम इस पे चला जाएगा, डिजिटल पे. जी. जो डायलॉग और कन्वर्सेशन वाला काम होगा, वो मैक्सिमम फिजिकल पे ले आइए. लेकिन वो जो फिजिकल पे लाना होगा, see for example, I mean, I see there is a class which is off school hours. The teacher की strategy will be completely different. There's another class which is within the school hours, and the teacher and the other teachers are saying कि बस इससे ज़्यादा time आपको नहीं लेना. There the teacher strategy will be different. There's a rented building. अब जिससे आपने रेंट पे लिया वो अगर खड़ूस हुआ तो आपको कहेगा साचात घरा, तो वो एकदम डॉट पे बात करेगा. वहाँ टीचर की स्ट्रेटेजी अलग होगी. बट ये जो 7 आइटम्स मैंने बताए थे, इनफैक्ट लेट मी क्विकली रिकैप: teamwork, socialization, worldview formation, life skills, communication skills in general, and physical activities and exercise. तो अभी मैं activities पे उतना नहीं जाऊँगा. These are the things which I think so in your physical digital combo, you have to figure out what is which can be done here. I was discussing with some friend of mine, and he said sir, ये जो सही रेशियो क्या है, मतलब एक फिजिकल क्लास और कितने डिजिटल क्लास, इससे ये सब हम लोगों को अभी सीखना पड़ेगा. एंड ये नॉर्मल स्कूल में द लेसन दैट वी विल लर्न, प्रोफेशनल कॉलेज में द लेसन दैट वी विल लर्न विल बी completely different from where you are giving off school support, youth program support, vocational training support. In fact, one thing which I did not touch, and my apologies probably to some of the teachers, जहाँ पे women के tailoring classes हैं, I mean, I really don't know how are you going to handle that. So because because as someone said ना कि आप जितना भी हल्ला कर लो, रोटी जो है वो गूगल पे डाउनलोड नहीं होती है, वो तो किचन में बनानी पड़ती है. बिल्कुल. So similarly, जब आपको, but even there I personally feel that certain parts can be made into digital. वो बैठ के एक YouTube पे ही देखें कि ये ड्रेस कैसे सिला जाता है. But there's a limited scope for that. But so we will have to probably design what is the physical class and digital class ratio, and how to make maximum use of physical for dialogue and conversation, and maximum monologue should be. In fact, thank you for asking that question. अब ये concept में थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि monologue for digital and multi-log for electronic. That's an interesting point. Yeah, I mean, all of you will realize कि अच्छा moderator हो तो कितना फायदा होता है. नहीं, इसी से related एक और बात मेरे दिमाग में आई थी कि जो ये
ऑनलाइन शिफ्टिंग टू डिजिटल और शिफ्ट टेकिंग इट टू फिजिकल एंड डिजिटल वाली बात है, उसमें आपको ट्रेनिंग सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, उनके गार्डियंस, उनके पेरेंट्स जो उनके घर में एडल्ट्स हैं, उनको भी देनी पड़ सकती है कि स्कूल को किसी तरह से थोड़ा बहुत, होम को किसी तरह थोड़ा बहुत स्कूल की तरह बनाया जा सके। तो क्या ये इसमें क्या एक्स्ट्रा काम टीचर्स का होगा, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? I thought about it. It is easy for some of us who are very secure economically. That's right. To have this luxury of getting trained. Precisely. What bhashan do I give to that person who says कि सर बच्चे की पढ़ाई में तो बहुत दिलचस्पी है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? What training do I give to that father? Exactly. What training I give to that mother जो पेट काट के बच्चे को खिला रही है? उसको मैं कहता हूँ कि नहीं, उसके पास ना वो एंड्रॉइड जो है वो 12,000 वाला नहीं है, वो जूते मारेगी मेरे को, नहीं मारे तो गनीमत है. I mean, this is, I'm sorry for being very candid, but I think some of these things, the reality is going to be so harsh. अब ये जब शुरू होगा, in fact, I would request Vidya Management to quietly document some of these harsher realities. That's right. तुरंत उसी दिन मुंबई मिरर में जाने की जरूरत नहीं, but I think we should record it because हुआ क्या है कि ruling elites have messed up. That's and right. Citizens have to clean up. अब ये हमें इससे मुक्ति नहीं है. Then clean up के लिए तो एक मैनुअल अपने को बनाना पड़ेगा. So I mean I had thought about this whole issue कि parents को, वो जो parents खुद ही vulnerable position में है, उनको बच्चे की ट्रेनिंग के लिए पाठ पढ़ाना, I think it will probably be, I would say it will be cruel. That's true. I'm sorry, I'm a bit blunt on this. No, I agree with you. The point I was trying to make was that it would be a little, it would be detrimental to a child who's like, when we are teaching, when especially those who are first generation learners, for them to do this in a home environment. But I understand what you're saying. Yeah, in fact, all the teachers have to be extra sensitive, in my opinion, during this coming. I'm using Diwali as a benchmark. You see, हम लोग कितने भी depressed हो, दिवाली में एक temporary तो वो खासकर बच्चों का हो ही जाता है. कम से कम दिवाली तक, I think 2 चीजें teachers must avoid. One is telling a disadvantaged child कि तेरा ये disadvantage है. In fact, उसको उससे बाहर लाना है. And second is, don't keep rubbing the pandemic in again and again. मैं तो उसको बच्चों को, in fact, a positive message to the children will be कि तुम लोग lucky हो यार, हम लोग जो 60 से ऊपर वाले हैं ना, we are more vulnerable. तुम लोगों को भगवान ने उसमें ज़्यादा resist करने की ताकत दी है, तो अभी उसका इस्तेमाल करो, है ना? अभी वो reserve पे गाड़ी चलाओ. You have. So that positive message to the children that look, you are better off than our generation. I think that, so teachers will have to be little sensitive for this next 5-6 months of seeing that psychologically, with all the depression, psychologically the children have to remain slightly pepped up. That's right. The other, my favorite aspect of all this is the idea of rethinking the idea of exams. कि जो एग्जाम्स हैं अब वो कैसे होंगे, अब आप ऑनलाइन अगर करेंगे, आप बात कर रहे थे गेमिंग द सिस्टम की, बट इज दिस नॉट अ गुड टाइम बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन वेयर वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ वी मेजर लर्निंग आउटकम? schools के लिए especially. Yeah, this is something which we are separately thinking for formal schools जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं. मुझको लगता है कि probably protocols will emerge where students will go to a supervised atmosphere. It can be a cyber cafe with CCTV. It can be a set of schools. For example, they will spare their classrooms. We have this facility, and that is something private schools might find it easier. But I think my worry is more about the government schools and aided schools. But I think for them, we have to get into a cooperative mode. जैसे कई जगह होता है ना कि एक आदमी ऑपरेशन थिएटर चलाता है और वो 10 डॉक्टर के साथ वो स्लॉट रहता है. तो
वो ऑपरेशन थिएटर सब चकाचक रखने की जिम्मेदारी मेरी, डॉक्टर आके अपना ऑपरेशन करके जाएगा। तो उसी तरह वो 10 स्कूल या 12 स्कूल या 15 स्कूल का एक ग्रुप, व्हाट दे विल डू इज दे विल मेक द infrastructure shareable infrastructure. So I think this is a time where we have to seriously look at shareable infrastructure, Right. and minimal supervision, minimal but effective supervision, where I think the CCTV and other electronic things might come in very useful. That's an excellent. I think we almost run out of time, but let me do one last question and then wrap this whole thing up. One of the questions that's come up is that most of our children may not have studied at all in the lockdown because of whatever various social constraints. But how do we now bring them back to the school environment in a normal day? This might take a little bit of effort. How do you recommend they tackle this? Yeah, there I will go by. Sorry for bringing this cricket analogy again and again. वो आपने कुछ दिन practice छोड़ दी. Then what happens is when you come back, initially get the rust of your bat. So initially you go for easier tasks. In fact, if you are teaching something worth of class 8, best is to tell them कि अरे class 7 में वो जो पढ़ा था ना, चलो एक recap मारो. Then you take the rust out of that the children's thing. उनको एक enthusiasm भी आएगा, and वो जो कहते हैं ना the inertia to be taken out. So we will have to be prepared to spend some initial fortnight or so in removing the inertia, and वो मतलब fast forward running, मतलब पुराने चीज का थोड़ा सा fast forward running करके then you get into the normal thing, because the current normal is also going to be slow. So, that's true. I think we've just about run out of time. Let me stop. Thank you very much, and then throw it back to Ankit and say, Ankit, I think it's your turn to come in now. Thank you very much. On behalf of our founder president Rashmi Mishra ji and vice president Honorable Dr. Nayan Dabholkar ji and entire Vidya family, I would like to thank Dr. Subramaniam for being the moderator of this session, as well as Professor Agnihotri for being our guest speaker. Thank you. Thank you so much to Mehala and Ravi Raj for being the tech support for the day. Thank you all viewers for joining us today, and may I request you to express your gratitude by showing thumbs up or thank you, and you can give your feedback in the chat box so that our guest speaker as well as moderators can know how much you like the session. Wow, we are getting so many good comments. Yes, thank you everybody and all the viewers for joining us today. We look forward to seeing you in our next webinar as well. Thank you so much and namaskar from me. Ankit, quick apologies that I didn't talk about college education, but then I told why I did not. So a couple of people were wanting college education, but फिर कभी. So there it reminds me of the शेर कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. Wow, sir. Thank you so much. With this note, we take your leave, everybody. Thank you for joining us today. We look forward to seeing you at our next webinar. Thank you. Thank you.